अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज अपने बल पे कि यूथ वेबिनार सीरीज नंबर 48 के साथ हम हाजिर हैं। 48 मींस आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वेबिनार सीरीज को 4 साल मुकम्मल हो गए। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, 4 साल मुकम्मल हुए। और आज बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आए हैं। हमारी ऑडियंस अपने बल पे इज ऑल अबाउट यूथ। हम एकेडमिया इंडस्ट्री को कनेक्ट करते हैं, बट जो मेन हमारा फोकल पॉइंट है वो यूथ डेवलपमेंट है, कैपेसिटी डेवलपमेंट है। और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाउ जेन जी कैन डू बेटर एट दी वर्क प्लेस। बहुत बातें सुनते हैं, जेन जी की अपनी शिकायत हैं, चैलेंजेस हैं। जो दूसरी साइड पे लोग हैं, मैनेजमेंट साइड पे, उनको जेन जी से शिकायत भी हैं, उनको भी चैलेंजेस भी आ रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जी क्या चैलेंजेस हैं और कैसे बेहतर किया जा सकता है इस चीज को। और आज बहुत ही लर्नेड स्पीकर्स हमारे साथ हैं। मैं तारुफ कराता चलूं। सबसे पहले स्पीकर हमारे साथ है रक्षंदा मेहर साहिबा, जनरल मैनेजर कूजा वेंचर्स एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। रक्षंदा मेहर is a seasoned human resource professional with over 15 years of experience, distinguished by their steadfast commitment to transformation and a talent for innovation. She excels in driving positive change with diverse organizations ranging from small enterprises to large corporations. Rakshanda's expertise spans strategic HR planning, learning and development, project management, data analytics, and fostering inclusive organizational cultures. Her versatility makes her an invaluable asset for organizations navigating today's complex business landscape. Rakshanda, welcome to ABP webinar. Thank you थैंक so यू much for सर। joining. Thank you. और हमारे सेकंड लर्निंग स्पीकर हैं जनाब मोहम्मद बिलाल काजमी, असिस्टेंट डायरेक्टर HRBP, इजी पैसा डिजिटल बैंक, CHRP. Mohammad Bilal Kazmi, CHRP, is an accomplished HR professional with over 14 years of experience and an MP and HRM from Bahria University. He has an extensive track record in developing and implementing HR policies, recruitment strategies, payroll and benefits, employee engagement programs, and performance management frameworks. His expertise and also covers compliance, diversity and inclusion, succession planning, leadership development, and culture transformation. Beyond corporate HR, Bilal is passionate about youth development. He has conducted numerous training sessions across leading universities, focusing on personal branding, professional growth, and career readiness. His thought leadership is reflected in articles published on LinkedIn and featured in industry magazines, amplifying his influence within the HR and business community. With hands-on experience in HRMS, HCM, TMS, and ADP platforms, Bilal effectively integrates technology with people strategies to enhance organizational capability and employee experience. Bilal, thank you so much for joining us. Welcome to ABP Webinar. My pleasure. आज की ऑडियंस यूथ है, यंग प्रोफेशनल्स हैं। जैसे मैंने टॉपिक के बारे में बताया, हाउ जेन जी कैन डू बेटर एट वर्क प्लेस। Today's webinar is all about gaining valuable insights to the professional world. As a Gen Z individual, you are about to embark on your career journey, and understanding what matters most in the workplace can make all the difference. In this webinar, we will explore the importance of company culture, purpose, and social impact, and how these factors can shape your career growth and satisfaction. सो रक्षांत, आपसे स्टार्ट करते हैं। जैसे भी हमने हमारी बात हो रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेनजी हमारा फ्यूचर है। पाकिस्तान की ओवर 50% से ज्यादा आबादी जेनजी के ऊपर जेनजी है। तो हम इन पे डिपेंडेंट हैं। तो आप इस आज के टॉपिक के बारे में, जेनजी के बारे में, प्लीज हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। Just like, first of all, thank you for inviting once again to the session. And it's always a pleasure connecting with you, sharing minds with you and other learned professionals. और अपने बल पे हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे लर्नड लोग आते हैं, उनसे सुन के मतलब इट्स नॉट इट्स बेसिकली अ कन्वर्सेशन, वी शेयर आवर आइडियाज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू बिलाल आल्सो कि उनका एक पर्सपेक्टिव क्या होगा। जिस तरह भी हमने डिस्कस किया, पाकिस्तान की 51.7% पॉपुलेशन जो है दैट इज बिलो द एज ऑफ 25 इयर्स। और बहुत अनफॉर्चुनेट ये है कि उसमें से 23 मिलियन जो हैं दे आर आउट ऑफ स्कूल्स। उनके पास कोई फॉर्म ऑफ फॉर्मल या इनफॉर्मल लर्निंग नहीं है।
और बट एट द सेम टाइम जब हम जेनजी की बात करते हैं तो दे आर द हसलिंग जनरेशन। ये वो जनरेशन है जिसने बहुत कुछ बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में देखा हुआ है। लाइक दिस इज द जनरेशन जिसने कोविड देखा है, जिसने 9/11 देखा है, जिसने एआई की रेवोल्यूशन देखी है, जिसने और भी दुनिया में जंगें देखी हैं। पहले हम सुनते थे ना, लाइक माय दादा यूज्ड टू टेल कि 65 की वॉर में या 71 की वॉर में ये हुआ था, एंड देन देयर वाज अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज नथिंग। लेकिन अब जो है क्योंकि हमें इंटरनेट की भी रेवोल्यूशन है, जेंजी इज वेरी अडेप्टेबल, वेरी लर्नेड, एंड it's a unique generation जो that is very focused on values. Like I'll share an example. My niece, she's 13 years old, and because I am in technology enthusiast, तो मैं AI के different tools try कर रही होती हूँ. So I was telling my brother-in-law कि मैंने एक PowerPoint का बहुत अच्छा tool. She was against, खाला आपको पता है कि AI कितनी आपकी एनर्जी ले रहा है? It's against sustainability, it's against our planet. तो आज का ये जो ये जेंजी है जिसको हम बहुत ज्यादा हाइप दिया हुआ है कि इनके नखरे बहुत हैं, इनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं, बट एट द same time they are more conscious, they are more value driven, they are more passionate. Although there are some issues with communications or connecting with Gen Z's, but they are more adaptable than other generations. जिस तरह हुर्फ आम में जब हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, दो आई एम नॉट सेल्फ वेरी यंग, लेकिन एक हम कहते हैं ना कि यहाँ तो बाबे बैठे हुए हैं, तो जेनजीज आर वेरी अडेप्टेबल, वो लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, दे आर डेवलपिंग बिजनेसेस। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद जेनजी। बस आपको थोड़ा सा उन्हें समझना है, टाइम देना है, एंड लाइक एनी अदर रिलेशनशिप, बट इफ यू कैन कनेक्ट विद जेनजी, you can make them work for you. They are very productive. So this is the brief start from my end, and we can continue with the conversation. थैंक यू सो मच। आज मैं ऑडियंस को एक और बात बताता चलूं, थैंक्स टू बिलाल। एक्चुअली आज हमने एक चीज़ एडिशन की है, रबी आफाफ साहब हमारे साथ हैं और आज हम साइन लैंग्वेज के थ्रू भी अपने जो वेबिनार है उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ऑडियंस है जो साइन लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है, तो वो भी आज के वेबिनार का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू बिलाल, इट्स योर रिकमेंडेशन, रियली ऑनर फॉर दैट। बिलाल आपकी तरफ आते हैं। That's a great gesture. I really appreciate that. Really appreciate, और frankly we are honored and thank you so much, really appreciate। आज just imagine कि 4 साल में हमें ख्याल नहीं है, और thanks to बिलाल कि उसका आइडिया था और उसी ने इस चीज को really appreciate। बिलाल आपकी तरफ आते हैं, इस टॉपिक के हवाले से हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। अगेन खुरम साहब, पहले भी आपसे मुलाकात हुई और बात भी होती है। सो आई थैंक यू एंड अपने बल पर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट एंड एंगेजिंग मी फॉर दिस। एंड मेरे ख्याल से जो क्रेडिट है वो नाउ पीडीपी को जाता है, बिकॉज दे आर द ऑर्गेनाइजेशन हु आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। ऑल्दो अगेन पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड चीज अब अगेन इज इन द मार्केट, बट हम क्योंकि रेगुलरली उनसे डील नहीं करते तो हमें उनकी चीज़ों के बारे में इतना प्रॉब्लम या एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता, इसलिए अब ख्याल नहीं आया। तो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द ओवरऑल परसेप्शन ऑफ दैट एरिया। एंड जहाँ तक जेनजीज की बात है, मैं शायद आई एम वन ऑफ द पर्सन जो कि ही इज अगेन फ्रॉम मिलेनियल्स, बट आई कंसिडर माई सेल्फ वन ऑफ द जेनजीज। व्हाई? बिकॉज मौला अली के अगर कॉन्टेक्स्ट से मैं बात करूँ तो मौला अली कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों की तरबियत भी कर रहे हैं तो आप उनके दौर में जी रहे हैं, तो उनके दौर के हिसाब से उनकी तरबियत करें, ना कि आप मोल्ड करने की कोशिश करें उनको अपने हिसाब से। So again, as a senior and as a person who's again can be a mentor for a lot of people, I think कि हमें सिर्फ समझना नहीं है जेनजीज को, हमें बहुत सारे environmental changes को भी अंडरस्टैंड करना है, एंड जिसकी वजह से फिर हम बहुत फायदा ले सकते हैं जेनजीज का भी। एंड कमिंग फ्रॉम द एचआर बैकग्राउंड, हम सुबह शाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे होते हैं और बहुत दफा राइट पर्सन फॉर राइट जॉब ढूंढते थे, जो पहले इस दौर में बहुत ज्यादा कंसिडरेशन में स्टेटमेंट यूज की जाती थी। तो अब अभी भी आइडियली जो अगर हम देखें तो जेनजीज को हम राइट पर्सन फॉर राइट जॉब कह सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरह की एनवायरनमेंट है, जिस तरह की फास्ट पेस इंडस्ट्रीज हो गई हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जिस तरह हम देख रहे हैं, आज से मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले तक एआई के बारे में कोई बात नहीं करता था। अब आप देखते हैं कि सीनियर मेंबर्स भी एआई से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। तो सेम थिंग्स फॉर अस कि हम जब अडेप्टिव नहीं होते तो हमारे लिए वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं और हम मार्केट का हिस्सा नहीं रहते। अब जेनजीज आर द न्यू क्या कह सकते हैं वर्कफोर्स वी हैव, एंड वी हैव टू बी अडेप्टिव विद देम एंड अंडरस्टैंड दैट वो कैसे ऑपरेट करते हैं, हम उसके साथ कैसे इस चीज़ को सिंक्रोनाइजेशन को बना सकते हैं।
और जो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि जेनजीज को थोड़ा सा गाइड करें कि वो कैसे वर्क स्पेस में अपने वो कर सकते हैं। मैं अभी आज सेशन से पहले भी अपनी टीममेट से बात कर रहा था एंड आई वाज थिंकिंग टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज माय पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू जेनजीज, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरे ख्याल से जेनजीज आर हाईली क्या कह सकते हैं, फ्लेमेबल। आपके जो एमिनेशन है वो होते, और आप उसको कैसे यूज करते हैं दैट्स ऑन यू। और अगर आप उनको प्रॉपर्ली चैनलाइज कर लें तो आप उनसे बहुत बेहतर काम करवा सकते हैं या उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन, हाउ यू यूज देम। एंड माइंडसेट की भी बात कर लें तो अगर माइंडसेट में भी देखें, बहुत सारी चीजें हैं। कल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर एक मैं किसी डिप्टी मैनेजर ने लिखा हुआ था कि मेरी टीम मेंबर ने मुझे लिखा दैट सर आई वुड बी ऑन कैजुअल लीव टुडे। So for me, at my time when I was a mid-level manager, मुझे ये अपने बॉस को लिखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि बॉस मैं छुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है। बट नाउ they mention it like कि I'm taking a casual leave. And what do you mean by casual leave? Casual leave means I'm not coming to work. It's That's it. casual. There is no reason. बेचारा हम अपने टाइम पे बेचारा अगर अभी भी बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि क्या मैं ये रीजन दूं, अम्मी को बीमार बताऊं, किसी की अपॉइंटमेंट बताऊं, हॉस्पिटल जाने का बताऊं, गाड़ी के खराब होने का बताऊं, बारिश, कोई ऐसा रीजन दूं जिसमें मेरा बॉस कन्विंस हो जाए। बट नाउ व्हाट वी सी इज लाइक सर 6 बज गए हैं, मैं जा रहा हूँ, आप बैठे हुए हैं, चले अच्छी बात है। हम क्या करते थे कि अगर बॉस बैठा हुआ है तो हम भी बैठे हुए हैं, जब तक बॉस नहीं जा रहा, बेशक बॉस 9 बजे तक बैठे, हम भी बैठे हुए, रेट यही कर रहे होते। तो अब दे कम अप विद दिस बैलेंस अप्रोच अलॉन्ग विद देयर वर्क कि अब उनके वर्क आवर्स खत्म हो गए हैं एंड दे शुड लीव। So which is again interesting and a source of learning for us. A lot of people I see as a manager जो Gen Z से सीख के अब अपने हायर अप्स को बताने लग गए हैं कि मेरा टाइम हो गया। वर्क लाइफ बैलेंस भी मैटर करती है, और इवन हमारे कल्चर सर्वे के अंदर आ रहा होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर वी शुड वर्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच इज ग्रेट। सो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग कि जेन जीज एक टैबू है या जेन जीज जो है वो हमारे लिए चैलेंज है, वी आर अ चैलेंज फॉर देम एज वेल। एग्री, थैंक यू सो मच। और अब आगे चलते हैं। कंपनी कल्चर, लर्न हाउ टू एवेल्युएट एंड नेविगेट डिफरेंट कंपनी कल्चर्स टू फाइंड द बेस्ट फिट फॉर यू। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं दो जेनजीज को, दो बेटे हैं, दोनों जेनजी में आते हैं। कुछ अर्से पहले एक मेरी वाइफ की भांजी का हस्बैंड, वो भी जेनजी का बच्चा है, तो उससे शादी, उस बात हो रही थी, तो उसने जॉब स्विच की। वो लाहौर में जॉब कर रहा था और वो इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। मैंने वैसे ही पूछा कि जनरल जैसे क्वेश्चन होता है कि बेहतर पैकेज पे जा रहे हो? उसने कहा पैकेज बहुत डिफरेंस नहीं है, बट मुझे वहां आवर्स सिलेक्ट करने का मौका मिल रहा है। फैमिली स्टार्ट हुई है, बेटा हुआ था उसका। तो उसने कहा और मुझे प्लस पॉइंट ये कि वहां मैंने 6 आवर्स वर्किंग अपने सिलेक्ट किए हैं कि आई विल वर्क फॉर 6 आवर्स, और इतने दिन हफ्ते में वर्क फ्रॉम होम होगा, इतने दिन होगा। और रीजन ये है कि मैं आई वांट टू हेल्प माय वाइफ, मैं अपने बच्चे के अपब्रिंगिंग में करना चाहता हूँ। एक्चुअली आई वाज, मैंने थोड़ी देर के लिए तो मैं खामोश हो गया। भाई हम जेन एक्स के लोग हैं, मिलियनर नहीं है हम, तो सभी पुराने। एंड आई रियली, मैंने कहा यार वाह क्या बात है। इसलिए कि मुझे नहीं याद, बड़े बेटे का बचपन तो मुझे याद भी नहीं है कि कैसा गुजरा था। हम जैसे भी कहा बिलाल ने, हमारे जमाने में तो छुट्टी का तस्वुर नहीं था। जब मैंने जॉब स्विच की थी इन बिटवीन, तो 4 महीने तक कोई छुट्टी नहीं थी। क्या संडे, क्या 10 मुहर्रम, क्या 14 अगस्त, क्या ईद के अलावा 4 महीने तक कोई छुट्टी नहीं थी। और छुट्टी मांगना ऐसा लगता था जैसे कोई, आप जो है ना परमिशन टू किल मांग रहे हो। एनीवे, रक्षण आपकी तरफ आते हैं। जेन जी मार्केट में आ चुके हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं, आ रहे हैं। हम जो जेन जी को डिफाइन, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो 1992 2010 के जो बच्चे हैं उसको हम इन बिटवीन जो है उनको हम जेन जी कहते हैं। कल्चरल फिट में इशू आता है, क्यों? हम जैसे जेन एक्स के लोग भी बैठे हुए हैं, ज्यादातर जो उनको डील करना है वो मिलियनल्स को डील करना है, उनके बॉसेस मिलियनल्स हैं, कुछ के जेन जी भी होंगे, बहुत हैं। तो हाउ टू फिट इन दैट कल्चर, क्या करें? जेन इस वक्त, इसलिए कि हमारी ऑडियंस यूथ है, हमारी ऑडियंस में बहुत ज्यादा जेंजी हैं, तो उनको अगर हम फैसिलिटेट करें, उनको गाइड करें कि भाई कंपनी कल्चर में फिट होने के लिए, विदाउट एनी फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए वो कैसे फिट हो, क्या करें, क्या इनिशियली इवोल्यूशन क्या करें, कैसे फिट हो, क्या हो। तो उसमें रक्षित आप गाइड करें, फिर हम बिलाल से इसी पे जाएंगे। अच्छा, अभी आपने मतलब ड्यूरिंग आवर डिस्कशन हमने 2-3 तो बड़ी की एग्जांपल्स कह दी, जिस तरह बिलाल ने शेयर किया आस्किंग फॉर अ लीव, जेन जी इज वेरी असर्टिव। जिस तरह आपने शेयर किया कि उन्हें पता है कि व्हाट आर द प्रायोरिटीज, वो
उनके लिए टाइम था, फैमिली टाइम। सो ना जेंजी की एक अच्छी बात ये है कि दे नो देमसेल्व्स व्हाट देयर प्रायोरिटीज आर। लेकिन जो मसला आ रहा होता है हमें जेंजी के साथ, वो कम्युनिकेशन का है। जिस तरह जेंजी, और इस वक्त हम जेन अल्फा की भी बात करें, बिकॉज एक्सेस तो हमारा उनके साथ भी होना है फ्यूचर में थोड़ा, तो हम कहते हैं उनकी तो एक लिंगो ही बिल्कुल अलग है। ऑब्वियसली जब नया नया हमने भी व्हाट्सएप पे जाना शुरू किया था, so we had our own short forms and abbreviation, but now they have their own delulus and everything, insta generation है। तो if Gen Z wants to connect, एक तो उनके लिए जरूरी है कि they should know कि वो उन्हें भी एक, they have to be cognizant that they are working with multiple generations and not every generation understands their way of communication. So उन्हें they have to strengthen in communication and they should be open to feedback and balance reliance on technology, क्योंकि they are digital natives। हर चीज के लिए उनके पास एक टूल है, एक ऐप है। और इनफैक्ट जब मैं भी बहुत सारी बैंक्स में मेरी बात हुई थी, लॉट ऑफ बैंक्स हैव स्टार्टेड यूजिंग, जिस तरह एचबीएल ने तो टिकटॉक पे अपनी रिक्रूटमेंट कैंपेन रन की थी, बिकॉज दे नीडेड पीपल। जेंजी जहां पे है वो वहां पे रन करेंगे। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। एक तो कम्युनिकेशन पे करें, फीडबैक के लिए ओपन रहें, एंड देन बैलेंस द टेक लाइंस, क्योंकि ऑब्वियसली यू गेट द थिंग डन, लेकिन आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना है। यू हैव टू ऑब्जर्व कि वहां पे क्या चीजें चल रही हैं, व्हाट आर द नॉर्म्स। ठीक है, इफ यू प्रेफर, लाइक यू लव इनोवेशन, यू लव टू ऑटोमेट थिंग्स, लेकिन आपके यहाँ अभी भी वही फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, दो ऑब्वियसली यू विल लुक फॉर अ जॉब दैट फिट्स योर स्टाइल, लेकिन आपको देखना है आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, उस तरीके से खुद को थोड़ा अडॉप्ट करना है। एंड जेन जी इज वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट रिगार्ड। वो अडॉप्ट अगर करना चाहें तो बहुत जल्दी अडॉप्ट हो सकते हैं। सो आर ऑडियंस, द पार्टिसिपेंट्स हु आर फ्रॉम जेन जी, जो अभी वो कल्चरल फिट का उनको इशू आ रहा है, सो एक तो आप अपनी कम्युनिकेशन पे करें, बी वेरी ऑब्जर्वेंट एंड ट्राई टू थिंक फ्रॉम अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। लाइक आई रियली अप्रिशिएट, जिस तरह भी बिलाल ने कहा, ही स्पोक टू हिज कोलीग्स हु आर फ्रॉम जेन जी कि व्हाट इज देयर पर्सपेक्टिव ऑन दैट। तो वो भी अपने पेरेंट्स से बात करें या किसी एल्डर कजन से बात करें। यूजली पेरेंट्स वाला एक डिवाइड आ रहा होता है, यू आर नॉट दैट फ्रैंक और ओपन विद देम। एक रिस्पेक्ट भी होती है जो हमारा ट्रेडिशन का है। अच्छा, हजरत अली के इन्होंने कहा, डोंट रेज योर किड्स फॉर फ्रॉम योर ओन जनरेशन, दे आर फॉर दिस जनरेशन। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यू कैन कनेक्ट विद योर कजन्स, लाइक माइंडेड पीपल, और उनसे पूछें व्हाट इज देयर पर्सपेक्टिव। सो दे हैव टू बी ओपन टू फीडबैक, वर्क ऑन कम्युनिकेशन एंड बैलेंस टेक्नोलॉजी एंड द ट्रेडिशनल वर्क फोर्सेस, क्योंकि ओवरनाइट चेंजेस नहीं हो सकते हैं। सो जेंजी को अगर कल्चरली फिट होना है, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड, एक जो हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, वहां पे आप कहेंगे कि आई एम टेकिंग अ कैजुअल लीव, ऑब्वियसली यू विल बी द मिसफिट। लेकिन अगर आप एक टेक स्टार्टअप में हैं, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में हैं, या इवन किसी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी, किसी मोबाइल ऑपरेटर में या एमएनसी में है, दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर्म। तो यू हैव टू सी कि आपके यहाँ क्या चीजें चल रही हैं। इफ यू वांट टू सबमिट अ फॉर्मल एप्लीकेशन 2 days in advance, तो यू हैव टू अडॉप्ट एज पर योर एनवायरनमेंट। जिस तरह कहते हैं ना, डू इन रोम एज रोमन्स डू। तो जैसा देश वैसा भेष, तो जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उस लिहाज से अपने आप को अडॉप्ट करें। और अगर अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो देयर आर अदर ऑप्शंस। आप सेलेक्ट, कीप सर्चिंग, कीप अपस्किलिंग। जिस तरह अपने बल का प्लेटफॉर्म है और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, keep on upskilling, and Gen Z is very good at upskilling themselves. So this is one way to adjust culturally within a workplace. थैंक यू सो मच। बिलाल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी, जैसे उन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी इज द की, और अडेप्टिव अगेन एक बड़ी मजेदार रिसर्च भी है जिसपे कहते हैं कि जो सर्वाइवल है ना, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो स्टेटमेंट कोट की जाती है, उसके अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो सर्वाइव नहीं करते ना, जो वीकेस्ट हैं, जो एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं, ऐसे वो लोग सर्वाइव नहीं करते। द ओनली पीपल दोज हु सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आर द पीपल हु आर मोस्ट फ्लेक्सिबल। आप पौधों को भी देखते हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट इस्लामाबाद, वी सी थंडरस्टॉर्म एंड सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीज जो कि हम देखते हैं कि कितने सालों से लगे हुए थे, जैसे ही तेज हवा चली वो टूट के गिर जाते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं जो तेज हवा की वजह से झुक जाते हैं, एंड इवेंचुअली व्हेन द टाइम इज राइट एंड सूरज निकल आता है तो वो दे स्टैंड टॉल अगेन। Same is the case with like adaptability.
तो जिस तरह एनवायरनमेंट के साथ वो अडेप्टिव हैं, सेम इज द केस विद द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो आएंगे और वो ट्रांजिशन को उन्होंने ऑब्जर्व करना है। इट हैज टू बी लाइक स्लो एंड स्टडी इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग कि या माय वे और द हाईवे नहीं हो सकता कभी भी। एंड दिस इज हाउ इट इज एट देयर होम एज वेल। ठीक है, तो अगेन इवन हम लिंगो की बात कर रहे थे, तो उस लैंग्वेजेस में बहुत सारी, जैसा मैंने लिंगो बोला तो ये वर्ड मैं बचपन से यूज नहीं करता था। ठीक है, इसी तरह बहुत दफा हम जब चैट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चैट में ऐसे वर्ड्स होते हैं। गोट इज अ वर्ड जो कि हम ग्रेट ऑफ ऑल एट ऑल टाइम्स वाली जो वर्ड, एक शायद अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं उसको बकरी ही का ही पढ़ता शुरू से। But again, this is again, which is again, we are adapting with them, and they have to understand. Same is the case with the culture of the organization, that they have to adapt with the culture of the organization. They should stand with their for their rights, but on the other side, they have to understand that there's a reason there are rules, and there are reasons there are policies and procedures for everything. If it is inhumane in those policies, they feel something is wrong, they should always talk about it, and they, since policies are man-made policies, we can always alter and modify policies, but उसकी कोई logical ground होना जरूरी है। तो अगर कोई convincing statement होगी, जेनजीज के मूड की बात नहीं हो कि मुझे अच्छी नहीं लगी ये पॉलिसी, तो क्यों अच्छी नहीं लगी, there has to be a logical ground. I think they are comparatively a bit confused generation, indecisive होते हैं, और आपको as a senior we can just help them to understand and make them understand that how to decide what decision should they make and how to practice this thing. जैसा बॉक्सिंग की होती है ना कि हम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं, then we understand कि जब मेरा ऑपोजिशन में मुझे अटैक करेगा तो मुझे रिफ्लेक्सेस मेरे रेडी होते हैं। इसी तरह डिसीजन मेकिंग इज लाइक दिस। बट जेनजीज के लिए अगर आप उनको फोर्स डिसीजन दे देंगे तब भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि ये बहुत एक रूड मैनेजर है या एक स्ट्रिक्ट मैनेजर है या एक स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सेम इज द केस अगर आप उनको बिल्कुल फ्री हैंड दे देंगे तो शायद वो ऑफिस भी नहीं आएंगे। सो आपको एक बहुत मिड रेंज में लेके चलना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू ट्यून देम अकॉर्डिंगली। जो अडेप्टेबिलिटी उनकी स्किल है या उनकी स्ट्रेंथ है, उसको कैसे यूज करना है, अगेन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन मिलेनियल्स। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसी हवाले से पर्पस ड्रिवन वर्क, understand the importance of finding meaning and purpose in your work and how to identify opportunities that align with your values. अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम जॉब में आए थे या इवन मिलियनर्स भी किसी हद तक जॉब मिल गई तो वो ढूंढते थे कि जी हमें पता होता था कि जॉब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमने काम ढूंढना है। एट टाइम्स होता था कि आपको एक जॉब, आप हायर हो गए, एक बैच में हायर हो गए, तो आपको पता था कि आपने आगे बढ़ना है, आपने काम ढूंढना है। इनिशियली 2-4 दिन आपको काम नहीं मिला, एट टाइम्स महीना महीना भी काम नहीं मिलता था, तो आप ढूंढते थे, आपको पता था आपने प्रोग्रेस करनी है। जनरली परसेप्शन ये है कि जेंजी बोर हो जाते हैं अगर उनको उनके हिसाब से काम नहीं मिल रहा या उनकी उनकी डेफिनेशन के हिसाब से चीजें नहीं मिल रही। तो कैसे हम उनको गाइड करें? बिलाल, आपसे पूछता हूँ कि कैसे उनको हम गाइड करें कि कैसे मीनिंगफुल पर्पस ढूंढें अपने वर्क में, कैसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढें जो उनके हिसाब से अलाइन भी हों और उनको उसमें दिल भी लग जाए और वो काम भी कर ले। काम तो करना है, इसलिए कि एवेंचुअली सक्सेस तो वैसे ही है, सक्सेस की डेफिनेशन तो चेंज नहीं हो रही। काम तो जब भी होगा जब काम कंप्लीट करेंगे, इसलिए कि जब वो वैल्यू ड्रिवन है, पर्पस ड्रिवन है, वर्क ड्रिवन है, काम तो करना है। तो उसमें हम कैसे गाइड करें? अच्छा, इसमें एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है जो कि जेनजीज में मैं देखता हूँ। दे वेरी इम्पेशेंट। अगर आप उनको सोशल मीडिया यूज करते हुए भी ऑब्जर्व करें तो उनका जो स्पैन ऑफ स्क्रीन है ना, वो किसी भी चीज के लिए वो 20 सेकंड 30 सेकंड, इवन हम टिकटॉक की बात कर रहे थे, तो अगर आपको लंबी वीडियो होगी, जिसका मैं अगर बैठ के एक लेक्चर सुनने में इंटरेस्टेड हूँ कि 1 घंटे का लेक्चर है तो मैं शायद सुन लूंगा, बट जेनजीज वुड बी हैप्पी टू स्क्रॉल इनटू लाइक 10-30 1 मिनट सेशन, जिसके अंदर इसके बाद वो बोर हो जाएंगे। तो they have to develop this patience in them, so to understand कि good things take time और आपको आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली वो करना अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी होता है। हाँ, बट सेकंड पार्ट इज बीइंग एम्बिशियस। दे आर वंडरफुल पीपल टू हैव दैट एम्बिशन, जो कि हमारे पास शायद अभी भी बहुत सारे लोगों के पास अपना वैल्यू ऑफ लाइफ या रीजन ऑफ लिविंग नहीं है। हम बस क्योंकि भेड़ चाल में जॉब में आ गए और फिर उसके बाद हमारा करियर डिफाइन हो गया, हम उसी करियर में एक्सपर्टीज डेवलप कर चुके हैं, तो वी कैन नॉट स्विच आवर करियर, बट दे स्टार्ट विद दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फुट कि अगर उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में जाना है तो दे विल वेट एंड देन इवेंचुअली व्हेन दे विल फाइंड दैट वैल्यू वो उसमें स्टार्ट करेंगे। तो अब जब उन्होंने स्टार्ट कर लिया है उस पे उनको पेशेंट होना जरूरी है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई वुड अगेन एग्री विद देम कि वो अपनी पर्पस ऑफ लाइफ के साथ कंटिन्यू करें, और विच इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जब आप पैशनेट होते हैं किसी चीज के बारे में तो आपको काम नहीं लगता। ठीक है, एंड अगर आप पैशनेट ना हो तो हर चीज ही बोरिंग होती है। तो फॉर अस
कभी कभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फाइनेंशियल क्रिटिकलिटीज ऐसी होती हैं कि हम नहीं भी जाना चाहते होते जॉब पे, तब भी हम वो काम कर रहे होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नीड दैट पे चेक। बट जेनजीज का मैं देखता हूँ कि बेशक वो फाइनेंशियली क्राइसिस में भी हो, बट वो अपनी वैल्यूज पे इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जिसका उनको फिर इवेंचुअली फायदा होता है। थैंक यू सो मच। रक्षंदा, इस पॉइंट पे अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। Yes, एड कि अगर हमें थोड़ा सा अगर हम डिफरेंट जनरेशन्स को स्टडी करें, इफ यू जस्ट गो बैक 10 years 15 years, आपके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज और वो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी जिस तरह आज आई नो लॉट ऑफ youth who are working for international companies sitting in Pakistan, मतलब their laptop is their workplace। हम वर्क फ्रॉम होम की भी बात कर रहे होते हैं, बट जो आपका एम्प्लॉयर ऑन रिकॉर्ड की बात है, तो Gen Z has a lot of options। ऑप्शंस के साथ जितने ऑप्शंस होते हैं उतना ही आपके लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल होता है। दे आर बिट इनडिसिसिव, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी क्विक इन मेकिंग डिसीजंस वंस दे आर डिसाइडेड। और देयर वाज अ स्टडी, गूगल did the study, उन्होंने स्टडी की, और ऑब्वियसली ऑन वेरियस पैरामीटर्स। उसमें यह था कि 54% ऑफ जेन जी आर विलिंग टू स्विच जॉब on no or a little rise in salary for a better opportunity, because they don't value money the most. There are other things that Gen Z values and they are very vocal about it. इसके अलावा गूगल का एक और है, because I love experimenting with various tools. In fact, मैंने इस वेबिनार के लिए भी जो थोड़े बहुत आर्टिकल्स रिसर्चेस की थी, तो वो सब मैंने गूगल पे नोटबुक एलएम पे डाल दिया। सो गूगल की अपनी स्टडी थी कि नोटबुक एलएम की जो यूजर्स हैं, पीपल हु आर इन द 30 और बिलो, वो शॉर्टर वर्जन्स को करते हैं। उनके लिए 5 मिनट इज अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम। वो शॉर्टर को सिलेक्ट करते हैं। जो 30 प्लस की है, वो चाहते हैं कि हमारी जितनी भी वो रिसर्चेस हैं, उसको आप कम से कम 20 मिनट्स, गूगल ने लिमिट रखी हुई है कि वो 15 to 20 मिनट्स का वो एलएम पे करेंगे। वीडियोस विल बी फ्रॉम 5 to 10। सो द रिसर्च इज टाइम एंड टाइम अगेन प्रूविंग कि जो आपकी जनरेशन है, उनके अटेंशन स्पैन बहुत कम है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ डू यू असेस, हाउ डू यू फाइंड योर पर्पस, सबसे पहले तो आपको अपने बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम अक्सर बात करते हैं कि खुद शनासी, खुद को पहले पहचानो। तो इफ यू आर गोइंग, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, दे आर नॉट ओनली उनके पास ये नहीं कि हमें अपने ही शहर में जॉब करनी है, अपने ही मुल्क में करनी है। और जो आपका नॉर्मल 9 to 5 वाला स्ट्रक्चर था, दे आर इन दिस गिग इकोनॉमी, जेन जी इज गोइंग फॉर हसलिंग। Like I personally know a lot of software houses who are, who have employed people below the age of 18, क्योंकि आजकल लोग हसल कर रहे हैं। If someone is good at one technical skill, तो वो they are being employed. So सबसे पहले तो आप ये देखें कि if Gen Z wants to find purpose, they have to see where their values are aligned. उनके लिए क्या important है, education, health, poverty, या making money, and then what are the things that give them energy, जो उनको energize करती है, and what are the things that drain them, and then they do the value mapping and find an organization. For example, if I'm someone who loves innovation, तो मैं ट्रेडिशनल हायरार्की गवर्नमेंट जॉब में खुश नहीं रहूंगी। और इफ आई एम समवन हु लव्स बीइंग मेंटोर्ड थोड़ा बहुत, तो मैं एक हायरार्किकल या ट्रेडिशनल जॉब में जाऊंगी। इसके अलावा इफ आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल कंपस, जिस तरह आई टोल्ड अर्लियर मेंशन्ड अबाउट माय नीस, शी इज 12 एंड शी वाज अगेंस्ट एआई बिकॉज उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, देन यू कैन गो फॉर सोशल सर्विसेज आर डिफरेंट। और अगर आप अपनी आज की जेनजी को देखें, या people between 20 to 30, they are the most active ones जिन्होंने सोशल वेंचर्स किए हुए हैं, लाइक फुटपाथ स्कूल एंड अदर स्कूल्स। पहले एनजीओस के लिए हम कहते थे ये बेगमात बनाती हैं, आजकल यूथ माशाल्लाह जेनजी, दे आर वेरी एक्टिव। सो फर्स्ट आप अपनी खुद शनासी पे काम करें, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, एंड देन assessments, and you can do it from a lot of ways, and then try to find a job an organization that is aligned with your values। और जिस तरह बिलाल आज इजी पैसा को कर रहे हैं रिप्रेजेंट एक तरह से, तो ही इन पर्सन, लेकिन तो आपको बहुत सारी अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, उनके लीडर्स के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ग्लास डोर पे, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ मटेरियल मिल जाता है। सो ट्राई टू अलाइन, क्या वो बात जो कह रहे हैं
आप उनके साथ अलाइन कहते हैं। आप एक स्पीकर नहीं 6-7 को देखें, अगर सबकी बातों में कोई रब्त है, कनेक्शन है, मींस उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग लाइक माइंडेड हैं। लेकिन अगर सब बिल्कुल एक डिफरेंट बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वो जैसा एनवायरनमेंट है वो वैसी बात कर रहे हैं। सो ट्राई टू फाइंड वेज आउट। थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे, जो एक हम 7P प्रिंसिपल कहते हैं ना, प्रायर, प्रॉपर, प्लानिंग, प्रिवेंट, पैथेटिकली वो परफॉर्मेंस। तो थोड़ा सा आपको पहले स्टडी करना है, एंड जेन ज़ी इज वेरी गुड एट रिसर्चिंग। सो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें, थोड़ा खुद को स्टडी करें, एंड देन बैलेंस इट आउट। थैंक यू सो मच। नॉट जस्ट रिसर्चिंग बट जी जी क्रिटिकल प्लीज। एनालिसिस के ऊपर। जी। अच्छा, क्या ये दुरुस्त कहेंगे हम कि डाइवर्सिटी इंक्लूजन, हम आप दोनों जो है, आप दोनों का टॉपिक है, आप दोनों के उसमें पोर्टफोलियो में भी आता है कि सबसे ज्यादा जरूरत डाइवर्सिटी इंक्लूजन को काम, जेंजी को काम करने के लिए, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल हु डिफर फ्रॉम योर एज, कल्चर एंड जेंडर? साफ सी बात अच्छा, है आई इसमें कि वुड लाइक टू देखिए। स्टार्ट I would love to start about this thing. Yes, gender diversity is one part of it. Age diversity. So, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डायलेमा, ये चैलेंज ही जेनजीज का ये है कि if they don't fit in, they don't like that area. अगर वाइब मैच नहीं कर रही तो वो वहां पे नहीं रहना चाहते, ठीक है? द वाइब अगर इज आपको नॉट वाइबिंग। लाइक अपने, हाँ नहीं, वो उनका एक है ना, द वाइब इज नॉट वाइबिंग, हर चीज में वो लगा हाँ, देते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा ही है। तो अगर आप उस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, बिकॉज अगेन कल्चरल डिफरेंसेस जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। सेम इज द केस विद जनरेशनल डिफरेंसेस, ठीक है? अब अगर मैं अपनी अम्मी को टच फोन सिखा रहा हूँ, तो उसकी रीजन ये है कि आई वांट हर टू अंडरस्टैंड। सेम इज द केस अगर जेनजीज वांट मी टू बी द पार्ट ऑफ देयर टीम और देयर ग्रुप, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई माइट बी अ बिट स्लो, बट मैं उनसे सीनियर हूं, तो देयर इज अ रीजन कि मुझे कुछ ज्यादा शायद पता हो सकता है कुछ चीजों के बारे में, और कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो मुझे भी नहीं पता और वो मुझे सिखा दें। सो अगेन, जैसा मौला अली का फरमान है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। सो बीइंग अगेन मिलेनियल, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी छोटे भी आपको बहुत लॉजिकल बात समझा सकते हैं, और आप उनकी बात समझें या सीखें। और सेम इज द केस, जेनजीज नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अडेप्टेबिलिटी सिर्फ ट्रांजिशन लाइक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की अडेप्टेबिलिटी नहीं है, या सोशल मीडिया की अडेप्टेबिलिटी नहीं है। It is again related to everything related to your life, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट सोसाइटी में जाना भी है, डिफरेंट लोगों से बात करना भी है। अब मैं बहुत दफे देखता हूँ, जैसे आपने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात की, आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो मुझसे एज में मेरी आधी एज के भी नहीं है, ठीक है? एंड आई मेट देम इन अ सेशन वेयर दे एक्चुअली केम एंड दे ऑफर्ड मी कि वो मेरी एक क्या नाम है, सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे हेल्प करना चाहते हैं, एआई ड्रिवन कुछ सोशल मीडिया की सपोर्ट मुझे वो देंगे। एंड आई वाज हैप्पी टू सी दैट कि दे वर एक्चुअली थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और अब जब मैं उनको सोशल वर्क करते हुए देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि वो मेरे साथ तो कंफर्टेबल नहीं है, बट मुझसे पुरानी वाली जनरेशन को वो हेल्प करने के लिए उनकी स्लो पेस बात को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस मीन्स उनके अंदर एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है, बट उनको किसी ने फिर सही से गाइड नहीं किया हुआ। और बिकॉज ऑफ दैट गैप जो कि हमने डेवलप किया हुआ है, उन्होंने डेवलप किया हुआ है, कि हम उनसे उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो अब वो उनके लिए एक टैबू है कि वो मुझसे शायद बात नहीं करेंगे, लेकिन वो दादा के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। और दादा, बिकॉज वो जो मिड वाली जनरेशन है, उसके साथ उनका वो कनेक्शन उस तरह का नहीं होता, बिकॉज दादा ने जो हमें एक्सपीरियंस दिया गुस्से वाला, वो उनको नहीं दे रहे, ठीक है? लेकिन उनके साथ उनका बॉन्ड डिफरेंट हो गया, तो अब दे कैन कम्युनिकेट विद स्लो पीपल इन कंपैरिजन टू अस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। एंड ऑन द अदर साइड, जेनजीज के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज समथिंग which is important, then they need to understand कि अगर वो भी कुछ कह रहे हैं और मैं भी कुछ कह रहा हूँ, तो two people can be right at the same time, instead of thinking कि मैं अगर कह रहा हूँ तो वो ठीक होगा, वो कह रहे हैं तो गलत होगा, या वो कह रहे हैं तो ठीक होगा और मैं कह रहा हूँ तो वो गलत होगा। There can be multiple ways to do things, जो ये कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इशू है, और उनको समझने के लिए वो जब तक उस सिचुएशन में जबरदस्ती नहीं डालते अपने आप को, वो उस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करते। वो अवॉइडेंस वाले स्टेट में रहते हैं, वो बेशक इमोशनल कम्युनिकेशन हो, बेशक वो कोई प्रॉब्लम शेयरिंग हो, वो अपनी टीम या अपने सेट ऑफ पीपल के साथ तो वो बड़ा ओपनली बात कर लेंगे, लेकिन वो अपने से, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हम एक्सप्लोर करते हैं कि गुड टच एंड बैड टच। तो अगर हरासमेंट का केस की बात करें, तो वो शायद अपफ्रंट उस टाइम पे रिएक्शन दे दें जेनजीज, बिकॉज वो अपने हक के लिए बोल पड़ते हैं,
लेकिन इफ दे हैव टू कम्युनिकेट द सेम प्रॉब्लम विद देयर एल्डर वंस, बड़े भाई से बात करनी है, तो वो शायद इतना रिलक्टेंट होंगे कि वो अपनी उस तकलीफ में डिप्रेशन में होंगे, वो एक साइलो में होंगे, वो अपने कमरे में बंद होंगे, बिकॉज अम्मी ने जो डांटा था वो उनको पसंद नहीं आया था, या टीचर ने जो उनको जबरदस्ती से पकड़ के खींचा था वो उनको पसंद नहीं आया था, एंड दे कैन नॉट शेयर इट विद मी, पता नहीं मैं उनको जज कर लूंगा, या वो जजमेंट की टेंशन में अपने इंप्रेशन को इतना बेहतर बनाने की सूरत में या कोशिश करते रहते हैं कि मेरा इंप्रेशन खराब ना हो, इंप्रेशन मैनेजमेंट के चक्कर में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन जो है ना वो टू वे होगी। अगर हमसे वो चाहते हैं कि हम कम्युनिकेट करें, तो दे हैव टू पेस अप एज वेल एंड दे हैव टू कम्युनिकेट विद अस एज वेल। अच्छा खुरम, Thank you. यहाँ पे आई एम सॉरी, आई एम नहीं नहीं, प्लीज कटिंग प्लीज, यू। नहीं नहीं प्लीज। मुझे थोड़ा सा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, बिकॉज जिस तरह मैंने कहा कि जब ये टॉपिक अर्शद साहब ने शेयर किया था, तो आई ट्राइड स्पीकिंग विद अ फ्यू पीपल, तो आई वाज सो हैप्पी टू सी कि ऑर्गेनाइजेशंस एंड एचआर इज एक्सेप्टिंग एंड दे आर रियलाइजिंग कि एजिज्म भी एक इशू ऑर्गेनाइजेशंस में आ रहा है। एंड वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आई वाज सो हैप्पी कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना मुझे सर्वे दिखाया, उन्होंने कहा different generations are living in different silos, तो ages, and then this फिर जब उन्होंने कहा कि they checked with other organizations, आप लोग क्या कर रहे हैं ageism को करने में, जिस तरह टेक के अंदर जो एक कल्चर होता है ना कि बहुत ज्यादा एक शीक कल्चर है, high paced, and at the same time there are people in their 50s working in the same organization, so they have started reverse mentoring and reverse coaching. Now you don't need someone senior to teach them. They are asking the younger ones to tell us, आपकी क्या जरूरत है, कि आपकी क्या भूख है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। एंड जिस तरह आज का टॉपिक तो हमारा है, हाउ कैन जेन जी डू बेटर एट द वर्क प्लेस, लेकिन एक ये है कि फ्रॉम एचआर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वी at least I and Bilal are, and you are a semi HR professional, आई finance एग्री। professional, you are a bridge. तो उसमें यह है कि हमें रोल प्ले करना है कि वी हैव टू इंश्योर कि जनरेशंस के बीच में भी ब्रिज हो। रिवर्स कोचिंग, रिवर्स मेंटरिंग is a very good option that can facilitate organizations in Gen Z to work better, to collaborate better, to coordinate better, improve productivity. जी, that's it from my side. थैंक यू सो अच्छा, मच। इसके अच्छा, अंदर एक और एक एलिमेंट जी जी प्लीज, अडैप्टेबिलिटी से रिलेटेड जी है, जी प्लीज। कल्चरल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। एक बुक है बड़ी मजे की, 1 मिनट मैनेजर, मैं अक्सर अपने सेशन में कोट करता हूँ, वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग से रिलेटेड है। सो अगर एक्सपेक्टेशन सेटिंग, जेनजीज एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन एक्सप्लेन करूं, एंड बहुत दफा ऐसा होता है कि वो डू एज डायरेक्टेड पे ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मेरा 6 बजे का टाइम था, मैं 6 बज के मैं जा रहा हूं। सो आपने उनकी एक्सपेक्टेशन अलाइन करनी है एज अ मिलेनियल, एंड सेम इज द केस विद जेनजीज एज वेल, कि अगर उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो they should always come up and ask and set up the right requirement, ताकि वो एग्जीक्यूट करने के बाद उस पे स्कोल्डिंग या कोई ऐसी बात ना एक्सपीरियंस करें जो कि उनके लिए तजलील का बाइस हो, या उनको लगे कि ये चीज एज का भी, जैसे हमने कहा, उसी तरह हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट एरियाज के लोग आते हैं, जो कि हम कहते हैं कि जो जियोग्राफिकल डिफरेंसेस के साथ आते हैं। उसमें भी अगर आप पुराने या ऐसे किसी एरिया की बात करें जहाँ पे लोगों की बहुत ज्यादा सिविलाइजेशन मॉडर्न नहीं है, तो वो जेनजीज के बारे में शायद कुछ भी नहीं जानते होंगे। एंड सेम इज द केस विद, अब जेन अल्फा आ चुकी है, जेन बीटा आ चुकी है, एंड व्हेन दे टॉक टू जेनजीज, तो मैं वो भी बहुत एंजॉय करता हूँ, बिकॉज वो उनको बहुत टफ टाइम देते हैं, एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो उनका क्या वो जो चल रहा होता है, कंपटीशन चल रहा होता है, which is again interesting because they are experiencing this thing, and अब वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि मिलेनियल्स के साथ जो उनका डिफरेंस है, वही सेम डिफरेंस जेन जीज एंड अल्फा के साथ भी हो रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम राइट एक्सपेक्टेशन सेट करें, बिकॉज मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि ये बहुत एक कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, तो मैं अगर उनको बीइंग अ मैनेजर और लीडर, मैं उनको एक ओपन स्पेस दे देता हूँ और थोड़ी सी लिबर्टी दे देता हूँ जेनजीज को, तो वो बहुत अच्छा आपके साथ कोलैबोरेट भी कर लेते हैं, कनेक्ट भी कर लेते हैं, एंड देन दे कम बैक टू यू विद दिस माइंडसेट कि मैंने आपके वाला एक्शन ट्राई किया था एंड ये तो फेल हो गया। तो वो आपको खुशी से बताएंगे कि आपका सजेस्टेड चीज खराब हो गई थी, लेकिन अगर आप उनको मौका देंगे तो वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, वरना वो सिंपल डू एज डायरेक्टेड पे चलते रहेंगे। आपने बताया था, ये कर दिया है, मेरा काम हो चुका है, आई एम ऑफ। तो आप उसके बाद यही एक्सपेक्ट करेंगे, अच्छा तुमसे नहीं हुआ, फिर मैं ही कर लेता हूँ बेचारा, 6 बजे के बाद मैं कर लूंगा काम। सो आपको अंडरस्टैंड करना कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन में उनके साथ तरीका क्या है बात करने का।
ऐसे बिल्कुल लाइक आई कैन फील यू। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, मैं 8 साल पहले हम पढ़ाया करते थे ना कि हाउ टू डील मिलीनियर्स, तो मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों को देख के ना, जब आप लोगों को जिंदगी को डील करके प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा एक चीज, अभी दो कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, और क्वेश्चंस बड़े मजेदार इस सेंस में कि एक जो है वो जेन एक्स या जेन मिलीनियल है, और एक जो है वो जेन जी है। उससे पहले एक पॉइंट कि रेजिलियंस और पेशेंस इज द की, मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज के लिए, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कि चाहे वो जेन जी हो, जिनको फिट इन होना है, जेल इन होना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, काम तो जब ही चलेगा जब सबने जेल इन होना है। सब लोग बैठे हुए हैं, हम किसी को वाइप आउट नहीं कर सकते, सबके साथ ही चलना है। एक था कि जी जेंजी शॉर्ट टेम्पर है, तो क्यों भाई, प्रॉब्लम ये है कि घर में मेरे 2 बेटे हैं, दोनों जेंजी हैं, क्या मैं उनके बगैर रह सकता हूँ? नहीं रह सकता। दे आर द फ्यूचर। 51.7% या 52% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज जेंजी। और ये इतनी बड़ी रहमत है हमारे लिए, जिसकी जो रहमत है, तो उस रहमत को हमें हजम भी करना है। वो खाली किताबी रहमत नहीं है, वो एक्चुअल रहमत है। तो क्या ये किस हद तक ये दुरुस्त है कि रेजिलियंस और पेशेंस हम सबको, जिन्होंने उनको मैनेज करना है और जिन्होंने जेल इन करना है, उनके लिए जरूरी है? इसका जवाब आप देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बिलाल अच्छा, आप आई कर लें, फिर स्टार्ट अफसर ऑन से बात दिस। करें। सबसे पहले तो बेसिक प्रिंसिपल, आई रियली अप्रिशिएट कि आज बिलाल ने 2-3 बार मौला अली का तस्करा किया। तो खैर, इस्लाम का ही एक प्रिंसिपल है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं अपने बंदे से? सब्र करो, शुक्र करो। सब्र और शुक्र दो चीजें, तो ये हर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेसन आप समझ जाए ना, तो बोथ थिंग्स, लाइक जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं उसके लिए यू हैव टू शो योर ग्रेटिट्यूड और सिंसियर। जिस तरह आपने कहा, जेन जी इज अ ब्लेसिंग। एक आपके पास आज दुनिया में बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ है, बिकॉज वहां पे द जनरेशन इज नॉट ग्रोइंग, मतलब फिजिकल पॉपुलेशन। सो वी आर ब्लेस्ड विद अ ब्लेसिंग, जहाँ पे हमारे पास काफी सारे मसले हैं। तो वी हैव वेरी गुड वर्कफोर्स। और हमारी वर्कफोर्स, अगर जरा दो देयर आर इश्यूज, कहीं कहीं चीजें लैकिंग भी हैं, मगर आप उनकी क्रिएटिविटी देखा करें तो मतलब एट टाइम्स आई एम अमेज्ड। जरा सी जब उन्हें कोई एनजीओ या कोई और प्रोजेक्ट में फंडिंग मिलती है, जरा सी गाइडेंस मिलती है, दे टर्न अप विद अमेजिंग प्रोजेक्ट्स। सो resilience is very important, persistence is very important। साथ में आपको पेशेंस, ये तो फिर इस्लामिक प्रिंसिपल है ना। ये वो चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ का, मतलब यू हैव टू मेक देम ग्राउंडिंग प्रिंसिपल्स। और इसके लिए अगर मतलब आप किसी भी रिलीजन को देख लें, किसी भी कोड ऑफ एथिक्स को देख लें, दे प्रोपोगेट द सेम। आपके पास, अच्छा ये वो चीज नहीं है जो हम जेन जी के लेके हैं, जेन अल्फा। मतलब टू द अर्लियर टाइम्स, जो आप डेल कार्नेगी की किताबों पे जाएं, ब्रायन ट्रेसी की, सो है ना, एवरीवन इज टेलिंग कि यू हैव टू शो डेवलप। और बहुत टिप्स टेक्निक्स हैं। पहले हम कहते थे गूगल कर लो, अब हम कहते हैं चैट जीपीटी से पूछ लो या किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से। यू विल गेट टिप्स एंड अ लॉट ऑफ people are using AI for their therapy, for their counseling as well. तो क्या टिप्स ट्रिक्स आपके लिए वर्क कर सकती हैं, दैट यू कैन सर्च। बट दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। 2-3 चीजें होती हैं, अगर सब्र है, शुक्र है, कम्युनिकेशन है, अपस्किलिंग की लगन है, पैशन है, सो दैट्स द कंप्लीट रेसिपी फॉर सक्सेस। आप किसी भी जनरेशन से हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई एम श्योर बिलाल विल एड सम मोर वैल्यू ऑन दिस। प्लीज। जी, बिल्कुल। पेशेंस एंड रेजिलियंस दोनों के कॉम्बिनेशन है जो हम लेके चलते हैं जिंदगी में, बेशक मेट बी एनीथिंग। और चीजें कंक्रीट होती भी तभी हैं जब हम पेशेंस के साथ, अब अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन ही देख लें, जब भी हम सीमेंट को यूज करते हैं तो देयर इज अ टैग डिफाइंड कि कितने टाइम तक आपने उसको नहीं टच करना, उस मोल्ड में रखना है, उसके बाद वो चीज मॉडिफाई होती है। तो अगर परसिस्टेंटली एक चीज के ऊपर काम नहीं किया, एंड देन अगेन जिस मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा, अगर आप सेल्फ लर्निंग पे भी फोकस्ड हैं और आप चाहते हैं कि ग्रो करें एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एज एन जेनजीज, तो बहुत जरूरी है कि आप एक दफा और ट्राई करें। अगर आपको लगता भी है ना कि बहुत दफा हो गया, स्टिल ट्राई वंस मोर, बिकॉज द पीपल हु फेल आर द वंस जो ट्राई करना छोड़ देते हैं। सो सिंस उनकी पेशेंस लेवल कम है, या वो उनकी जो एबिलिटी टू ट्राई अगेन वाली जो है, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं इस चीज के ऊपर, वो ही चीज उनको हमेशा थोड़ा सा स्लो रखती है इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ। बट अगर वो ये चीज सीख ले तो परसिस्टेंस इज समथिंग जो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेगी। पेशेंस इज वन ऑफ इन द सेम थिंग। बट उसके साथ साथ जो जिस आपने कहा कि हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं, पहले गूगल का यूज किया करते थे, बहुत दफा देयर आर थिंग्स जो कि सिर्फ
हार्ड वर्क से नहीं होती। देयर कैन बी अ स्मार्टर वे टू डू थिंग्स, एंड हर चीज के करने का एक बेहतरीन तरीका और हो सकता है। सो मुझे लगता है कि वो अगेन, अगर हम ये बात ना टच करें उनकी एजेंसीज की, कि वो हमेशा कोई बेहतरीन तरीका निकाल लेते हैं कुछ करने का, जो तो वो एक अच्छी क्वालिटी है जो कि हमें उस चीज को ऑनर करना चाहिए। एंड अक्सर मैं एक बड़ी मजे की कोटेशन सुनता था, जो है कि आप लेजी लोगों को सबसे मुश्किल काम दे देते हैं सो दैट दे कैन फाइंड अ इजीएस्ट वे टू एग्जीक्यूट इट। तो अगर आपको लगता है कि जेनजीज परसिस्टेंट नहीं है, तो आप उनके एनर्जी को जरूर यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ एनर्जी दे हैव वी डोंट हैव इट, ठीक है, यू डोंट हैव इट। तो अगर आपने उनकी एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर लिया और उसको यूटिलाइज कर लिया, तो शायद बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो सकता है। सो अगेन आई बिलीव मैं शायद बहुत ज्यादा इंक्लाइन हूँ टुवर्ड्स जेनजीज, बट रीजन यही है कि मैनेजिंग एचआर एंड देन मैनेजिंग जेनजीज was something जो कि मेरी जिम्मेदारी बन गई eventually, and now I've cracked a way to manage agencies, and I figured out कि ये तो बहुत easy भी है और बहुत प्रोडक्टिव भी है, कि आपको सिर्फ डायरेक्शन देनी है एंड देन उनके ऊपर छोड़ देना है। और अगर आपको लगे कि कोई चीज थोड़ी सी भी खराब हो रही है, तो आप उनकी डायरेक्शन को थोड़ा सा ऑल्टर करवाएं, और उनको दूर से भी अगर आप डायरेक्शन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो मसला आपका हल हो जाता है। So, अभी आज वाले सेशन में भी मुझे लगता है कि अगर हम उनकी सिर्फ डाउन साइड्स को टच करते रहेंगे, तो शायद वो अगली दफा इस सेशन को इंटरेस्टिंगली नहीं देखेंगे, यू क्योंकि आर इसलिए एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है राइट। कि उनकी तारीफ हो, बिकॉज हाँ, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, कि जब आप किसी की तारीफ कर, अल्लाह भी चाहता है कि आप उसकी तारीफ करें, एंड सेम इज द केस, अगर आप जेनजीज की थोड़ी सी तारीफ कर देंगे, वो फोकस होंगे कि अपने बल पे अगली दफा वो क्या बोलने वाला है, आई विल बी देयर। दे आर द फ्यूचर ना, न्यू नॉर्मल कहते हैं ना, दिस इज द न्यू नॉर्मल, तो दे आर द फ्यूचर। उसके अलावा वो फ्यूचर है ना हमारा, उसके अलावा है क्या हमारे पास। अच्छा, उसके क्वेश्चंस पे आते हैं। इमरान अहमद साहब का क्वेश्चन है, वो कहते हैं जी, नाउ हैविंग सेड ऑल जेन जी वी कैन सी दैट दे आर स्मार्ट, फास्ट एंड क्विक लर्नर्स, बट एट द सेम टाइम दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड, they are not doing justice to their work of assignments. Second, उन्हीं के क्वेश्चन है कि being AI in the industry is introduced, it does not mean all their work will be done by AI. They should create their own skills, as we all have experienced that the technology will challenge you once you rely on it the most. तो मैंने एग्जैक्टली कहा ना कि ये तो इस बारे में कुछ कहेंगे। एक चीज मैं इनको छोटा सा ऐड करना चाहूंगा। इमरान साहब, मैं दो जेनजीज घर में है, मेरे दो बेटे हैं, दोनों जेनजी से आते हैं। एक बात याद रखिएगा कि वो स्मार्ट होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बट हमने उनके साथ चलना है। जैसे भी बिलाल ने कहा कि ये फ्यूचर है हमारा। जब 52% मीन्स के आधे से ज्यादा जेनजी हैं, और जो बाकी आधे हैं उसमें अल्फा, बीटा, एक्स और मिलियनर्स और बेबी बूमर्स भी थोड़े बहुत रह गए हैं, ये सारे आते हैं। तो उनका दौर है, तो हमें अपने आप को उनके हिसाब से एडजस्ट करना होगा। वो हमारा फ्यूचर है, तो थोड़ा सा हमें पेशेंस, रेजिलियंस हमें भी करना पड़ेगा। वो गलत होंगे, वो चीजें होंगे, सारे शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते। हमें लगता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड, कभी कभी मैं अपनी बात बताऊं कि हो सकता है मेरा पेशेंस कम हो गया हो, तो मुझे हर दूसरा बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड लगता है। और ये फैक्ट है कि मैं एज बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो मुझे ना उनकी छोटी चीजों पे मैं फ्रिक्शन पैदा करता हूँ, तो वो मुझे लगता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो थोड़ा सा दिल बड़ा करके चीजों को करना चाहिए। बिलाल, टेक्निकल जवाब के लिए आपके एक पास। सेकंड, मैं सॉरी बिलाल, जी जी मैं प्लीज। यहाँ पे एक बात, आई ऑलवेज लव प्रमोटिंग आर्ट्स डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने आर्ट्स डेवलपमेंट से बहुत कुछ सीखा है। तो अगर आपको लगता है जेन जी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या इनडिसिसिव हैं या डिसीजन मेकिंग, प्लीज उन्हें आर्ट्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स में भेजें, एंड दे आर वेरी गुड, और वो बहुत कंपेटिटिव रेट्स पे भी कर देते हैं। मतलब कभी कभी तो गुस्सा आता है, इतना सस्ता क्यों कर रहे हो भाई। सो चलो नाउ हम बिलाल जाते हैं। प्लीज जी, कंटिन्यू। चलो अच्छा, ठीक आई है। आई वुड अगेन कम बैक टू माय जेनजीज। उसके अक्सर हम बात करते हैं कि डेविल इज इन द डिटेल्स। आप जितने, इमरान ने मेरे ख्याल से कमेंट किया, इमरान मुझे ये बताएं कि जब आप व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज या वॉइस नोट सुनते हैं, तो आप 1x पे सुनते हैं, आप 1.5x पे सुनते हैं, या 2 पे सुनते हैं? बहुत दफा लोग, हम, मेरी अपनी एग्जांपल है कि मैं 2 पे भी बहुत दफा सुन रहा होता हूँ। जब तक मुझे वो चीज समझ आ रही होती है, मैं 2 पे सुन रहा होता हूँ, या फिर मैं 1.5 पे चला जाता हूँ, बिकॉज आई वांट टू लिसन एंड प्रोसेस इट एज सून एज पॉसिबल। सेम इज द केस कि जो डिटेल्स है ना, आपने जब उनको कोई चीज बतानी है, तो आपने इंश्योर ये करना है कि आप उनको एक कम्युनिकेशन का एक मेजॉरिटी एरिया उन तक पहुंचा दें, बिकॉज कम्युनिकेशन इज, अगर मुझे पंजाबी समझ आती है और इंग्लिश समझ नहीं आती है, और आप मुझसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे सर पे से ही गुजरेगी। सेम इज द केस, जेनजीज के लेवल की कम्युनिकेशन करना हमारे लिए जरूरी है। वंस यू अंडरस्टैंड कि उनकी एक्सपेक्टेशन अलाइन हो गई है आपकी एक्सपेक्टेशन से, ना आपको पेशेंस का मसला आएगा, ना आपको उन पे गुस्सा आएगा, और कभी कभी आप खुद भी एम्पैथाइज कर लेंगे कि ओके, दिस इज देयर फर्स्ट टाइम, एंड देन दे विल टेक अनदर ट्राई एंड दे विल इवेंचुअली डू इट। तो वो अगर वो 2 दफा ट्राई करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे, शायद वो बहुत अच्छा कर देंगे। लेकिन आपने उनको जब पहली दफा जो इंस्ट्रक्शन देनी है, वो बहुत कंक्रीट होनी चाहिए। हम बहुत दफा
जब हम बड़े किए गए हैं, हमें आधी से ज्यादा बात बताई नहीं जाती थी, हमें सिर्फ कहा जाता था ये करके आ जाओ, जाओ दही लेके आ जाओ, जो सब्जी लेके आ जाओ, और फिर हम वहां जाके सोचते थे आधा किलो लेनी थी या 1 किलो लेनी थी, या वो अगर आपको इम्पेशेंट लग रहे हैं तो आपने उनको क्या बताया है कि आपके साथ जो हुआ है, आपने उनको एग्जैक्ट चीजें बता के नहीं भेजी, और वो वापस आके आपको कोई जवाब देते हैं तो वो बिकॉज आपने उनको नहीं बताया, एंड अगेन दे आर वेरी वोकल अबाउट देयर ओन राइट्स। सो आपने अपनी गलती का मलबा उन पे नहीं गिराना। अगर आप समझते हैं कि आप उनको राइट डायरेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद भी वो परफॉर्म नहीं करे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या शॉर्टकमिंग्स हैं जो उनकी कमिंग है। वरना ज्यादातर बहुत दफा ये होता है कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश सही तरह नहीं हो पाती, और एंड में हम ब्लेम उनको कर देते हैं बिकॉज छोटा है, हम ब्लेम कर सकते हैं, और वो इन रिटर्न हमें जवाब नहीं देगा, और अगर अब वो जवाब दे देता है तो हमें वो भी बुरा लगता है कि ये छोटा होकर मुझे जवाब क्यों दे रहा है। सो मुझे अगेन फिर वही लगता है कि हम जब कोई चीज एग्जीक्यूट करने वाले हो तो उससे पहले हम उसके ग्राउंड या उसकी फाउंडेशन अच्छी बना ले, और एक बेसिकली मुझे लगता है इवन जेंजीज के साथ आप एक ग्राउंड रूल सेट कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी बहुत सारी चीजों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे आप खुरम कह रहे हैं कि मेरे 2 बेटे हैं और वो दोनों जेंजीज हैं, आई कैन गारंटी कि खुरम उनसे बेटे की तरह बात नहीं करते होंगे, बिल्कुल दोस्तों वाला कम्युनिकेशन होता होगा, बट मैं जिस भाई के साथ बड़ा हुआ शायद मैं उस भाई से अब उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकता जिस तरह मैं अपने भतीजे से बात करता हूँ। मेरा भतीजा मेरा नाम लेके बात करता है, और वो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे यार बात सुने, ये कर लेते, यार यूं कर लेते, एंड आई कैन नॉट स्टिल टॉक टू माई ब्रदर लाइक मैं आई वुड बी टॉकिंग टू हिम लाइक मैं अब्बू से बात कर। रीजन यही है कि वो रिलेशनशिप बिल्डिंग हुई नहीं, और अब हम भी उनके साथ जेंजीज के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं कर रहे, हम वही चीज उनके साथ एक्सपीरियंस का शेयर कर रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है। जबकि अगर हमें फिक्स करना है तो somebody has to be at the full stop, somebody has to be that wall जो चेन ब्रेक करेगी। थैंक यू सो मच। रक्षित आपसे क्वेश्चन है, लाइबा हैं ये मेरे ख्याल में जेंजी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सिंस जेंजी हैज अ लो अटेंशन स्पैन, कैन सोसाइटी चेंज इटसेल्फ टू बिकम मोर जेंजी फ्रेंडली? और उसके इन्हीं का सेकंड क्वेश्चन है, रेफरिंग टू सोशल मीडिया अटेंशन स्पैन एज मेंशन्ड बाय मिस्टर बिलाल, व्हाई कांट वी जस्ट क्रिएट मल्टीपल शॉर्ट वीडियोस दैट विल ग्रैब जेंजीज अटेंशन? तो मैं जान के बिलाल से नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ रक्षित ये बात। जी देखें, सोसाइटी तो अडॉप्ट कर ही रही है। इनफैक्ट मतलब इनफैक्ट माय फादर, अब वो मुझसे पूछ रहे होते हैं स्किप का बटन यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहा है, ही इज माशाल्लाह इज इन हिज 70s। तो मैंने फिर उनके लिए, मुझे यूट्यूब का प्रीमियम नहीं लेना था, उनके लिए तो सोसाइटी ने तो अडॉप्ट कर लिया है। नाउ यू लुक इनटू, आपके ड्रामा शॉर्ट होते जा रहे हैं, आपकी और आपके जितने भी टूल्स आ रहे हैं, लाइक जिस तरह भी मैंने एआई का कहा, हेजन जो है वो आपको समराइज कर देता है। गूगल एलएम को आप 2 घंटे की मूवी दें, वो आपको 5 मिनट में उसका रिव्यू खुद बना के दे देगा। आप जो है करें तो सोसाइटी इज अडॉप्टिंग। लेकिन जहां पे बात फोकस की आती है ना, यू हैव टू क्लियर द डिस्ट्रैक्शंस। आपको जब काम करना है ना, तो फिर वो दिल लगा के लगन से ही करना है, चाहे वो फिर बिकॉज योर आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आपके पास टूल्स आ रहे हैं, बट देर इज, जिस तरह हम कहते हैं ना, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। उसी तरह focus is something that is needed for understanding, for developing your critical thinking skills। जब तक आप पूरी डिस्ट्रैक्शन से क्लियर होके नहीं सोचेंगे। सो जेनजी को थोड़ा सा, जिस तरह हमने कहा कि सोसाइटी तो अडॉप्ट कर रही है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन जो था, बट सेकंड में यू हैव टू बी, मतलब देयर इज नो शॉर्टकट टू बीइंग फोकस। और आजकल जितनी किताबें डीप वर्क पे, डीप थिंकिंग पे, फोकस पे लिखी जा रही है, उतनी और अगर मैं डेविड गोलमैन की भी बात करूं, पहले उन्होंने, ही इज नोन फॉर ईक्यू, मगर आज अब उनकी जो भी किताब करें, ही इज टेलिंग स्ट्रैटेजीज। और अब उनकी पहले किताबें होती थी 400-500 पेजेस की, अब वो किताबें भी छोटी हो गई हैं, 110 113 पेजेस। पहले आप एचबीआर पढ़ते थे, एक एक आर्टिकल 25-25 पेजेस का होता था, अब 2-3 पेजेस के होते हैं, और उसकी भी आपको समरीज मिल जाती हैं। सो सोसाइटी इज अडॉप्टिंग, बट जो भी आप काम करें, डू इट विद फुल फोकस, फुल अटेंशन, और डिस्ट्रैक्शंस को क्लियर करके करें। थैंक यू सो मच। अनीका मलिक का क्वेश्चन ये भी जेंजी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बिलाल आपसे, डू द लाइक माइंडेड पीपल आर एसेंशियल टू बूस्ट एनर्जी टू ग्रो, और शुड वी लर्न टू एडजस्ट एंड डील विद देम? दिल से क्वेश्चन आया एक बच्चे का। अच्छा, अनीका मलिक इससे से। पहले वाले भी सवाल के ऊपर मैंने सिर्फ लाइबा को शुरू में एक स्टेटमेंट बोली थी, मैन मेड पॉलिसीज हैं। इफ जेंजीज वांट्स कि कोई चीज चेंज हो जाए, सोसाइटी चेंज कर ले, तो यू हैव टू कम अप विद सम लॉजिकल ग्राउंड्स, एंड ऑटोमेटिकली इफ देयर वुड बी अ नीड। अब क्रिकेट में T20 आने के रीजन यही है कि वो 5 दिन का मैच होता था, फिर 1 दिन का हो गया, फिर अब T20 का हो गया।
तो आपने लॉजिकली कोई ग्राउंड बनाना है, और ऑटोमेटिकली ये चीजें चेंज हो जाएंगी। इंस्टाग्राम एंड ये जितनी भी वीडियोस आती हैं, इनकी एल्गोरिथम्स आप ही की वर्किंग के ऊपर काम कर रहा था। आई एम श्योर मुझसे ज्यादा आपको ये बात पता होगी। एंड जो दूसरा सवाल था सर, अगर प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? जी जी, उनका क्वेश्चन है कि जी डू द लाइक Adaptability माइंडेड पीपल, हाँ, डू द लाइक माइंडेड पीपल एसेंशियल टू बूस्ट और शुड वी लर्न टू एडजस्ट एंड डील विद देम? दोनों दोनों चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक माइंडेड लोगों का होना आपको एज अ पर्सन बहुत बूस्ट कर देता है, आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी टीम को खेलता हुआ देखें और उनकी सपोर्टिंग टीम कोई अवेलेबल ऑडियंस ना हो, तो उनका अपना मोराल बहुत डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से लाइक माइंडेड लोग आपके आइडिया को समझेंगे, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, हो सकता है वो क्रिटिकल एनालिसिस करें एंड आपको हेल्प कर दें। But obviously, difference of opinion and people with different mindsets again can actually help you refine your product. तो बहुत दफा जब आप देखते हैं कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आती है और उसके सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो उन्होंने असल में डिस्ट्रीब्यूट किए ही इसलिए होते हैं कि उसके ऊपर एक कस्टमर क्रिटिकल एनालिसिस हो, जो कि डिफरेंट अप्रोच के साथ चीज को यूज करे। तो अगर आपके पास डिफरेंट माइंडसेट के लोग नहीं होंगे और मैं हर वक्त सिर्फ तारीफ वाले लोगों को आपके साथ बिठा दूं, तो देयर इज अ चांस कि आपके फ्लॉज आइडेंटिफाई किए ही ना जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके दोस्त लाइक माइंडेड भी हो, बट ऑन द अदर साइड देयर हैज टू बी सम पीपल जो आपकी अगेंस्ट बात करें। और क्रिटिक फॉर द सेक ऑफ क्रिटिक नहीं होना चाहिए, बेशक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बट यू हैव टू लर्न टू लिव विद दिस। बहुत दफा आप कपड़े भी ऐसे ही पहनते हैं, जूते भी ऐसे पहनते हैं, जो आपने पहली दफा पहने होते हैं वो चुप भी रहे होते हैं, बट क्योंकि आपने वो स्टाइल कहीं शो ऑफ करना होता है, तो आप वो पहन के जाते हैं। इसी तरह you have to live with rest of the people who are different from you, and this is the beauty of life. अगर सब मेरे जैसे होते या सब आप जैसे होते, तो फिर एक ही जैसा इंसान होता। अल्लाह ने सबको डिफरेंट बनाया विद सब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड डिफरेंट क्वालिटीज एंड डिफरेंट माइंडसेट्स एंड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग का वक्त आ रहा है। जेनजी देखें, इस वक्त मैं आपको बिल्कुल, मैं एक जेनेक्स का रिप्रेजेंटेटिव एक बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं कि आप लोग कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, जब आपने जेलन होना, याद रखिएगा जो कुछ एबिलिटीज अल्लाह मियां ने आपको दी हैं, आपकी एनर्जी को कोई मैच नहीं कर सकता। क्यों? चीजें आहिस्ता आहिस्ता एज होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, एज इज नॉट, एज खाली नंबर नहीं है, एज एज मैटर करती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज की एबिलिटीज, आज की चीजें जो क्विक सॉल्यूशंस है, मैं आपको बताऊं, मैंने गाड़ी खरीदी पिछले दिनों, और वो इम्पोर्टेड गाड़ी है, उसमें कुछ जापानीज की चीजें थी, और वो मैं नहीं समझ पा रहा था। कल मैं डिनर पे, मेरा बेटा हॉस्टल में होता है लम्स में, तो कल रात वो डिनर पे मुलाकात थी, उसने मैं खाली 1.5-2 मिनट में वो मेरा मसला सॉल्व कर दिया। वो जेनजी का ही काम था, फ्रैंकली वो 2 मिनट का काम जेनजी का था। मैं उसको अगर लगाता भी तो आधा पौना घंटा मुझे लग जाता उस पर। तो वो आपकी एबिलिटी है। तो यही एबिलिटी जो आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब शो करेंगे ना, तो बिलीव करें आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। हर इंसान को कंफर्ट चाहिए होती है। तो जो आपके कॉलीग्स हैं, हम भी जब करते हैं ना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आपको अपनी वैल्यू शो करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू शो करनी पड़ती है। आप दूसरों को कंफर्ट देंगे, ऑटोमेटिकली अपनी स्पेस बनानी पड़ती है। ओके, बच्चा आता है वो अपनी स्पेस बनाता है। तो जब भी आप जाएंगे, याद रखिएगा कि जाएं तो अपनी जगह बनाएं, थोड़ा सा पेशेंस रिजिलियंस से हम दूसरों को भी गाइड करें मुस्तकिल। हमारा फोकस यही रहा, हम मेरे ख्याल में जेनजी से ज्यादा हमारी गाइडेंस जो थी वो मिलियनर्स और जेनेक्स को थी, कि आप अब्जॉर्ब करें, चीजों को करें। तो आपके लिए जरूरी है कि अगली दुनिया आपकी है, फ्यूचर आपका है, मगर लोगों को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी जगह बनाते जाएं। फ्यूचर तो आप ही का है, उसमें तो कोई सेकंड बात ही नहीं है। तो मैं दोनों स्पीकर से कहूंगा कि क्लोजिंग स्टेटमेंट दें, मैसेज दें आज का। और प्लीज बिलाल पहले आप दें, फिर रशीद। मैं अगेन आपकी बात से सिर्फ इसको कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द वैल्यू यू ब्रिंग इन। ठीक है, और अगेन एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप एक वैल्यू एडिशन है इन ऑर्गेनाइजेशन, एट योर होम, इन योर फ्रेंड सर्कल, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं और आप बहुत इम्पेशेंट होकर सोचते हैं कि मैं जल्दी ग्रो करूं, तो आप ग्रो सिर्फ तब करेंगे जब आप अपने पे इन्वेस्ट करेंगे। और डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो और बेहतरीन प्रोजेक्ट हो सकता है, वो आपकी अपनी जात हो सकती है। So just start valuing and adding value and improvising and developing yourself, and eventually you will see कि result will automatically fall after you. कोशिश होगी आपकी कि आप सिर्फ अपने आप को improve कर रहे हैं, कैसे अच्छी बात करनी है, कैसे अच्छा काम करना है। जब मैं काम करूं तो उसको रीवर्क की जरूरत ना पड़े, मेरे ऊपर कोई सुपरवाइजर की जरूरत ना पड़े, ये फोर्स करने की जरूरत नहीं है।
आपने सिर्फ काम इतना अच्छा करना है या सोचना इतना अच्छा है कि मुझे इतना अच्छा एग्जीक्यूट करना है कि उसको फिर रिवर्क करने की जरूरत ना पड़े, तो ऑटोमेटिकली दिस विल ऐड वैल्यू इन योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ द पीपल हु आर अगेन इन योर सराउंडिंग। बेशक वो मिलेनियल्स हो, बेशक वो अल्फा हो, अल्फाज के लिए आप लोग रोल मॉडल होने वाले हैं और उन वो एक टफ कंपटीशन दे रहे हैं आपको अभी से, तो मेक श्योर कि यू बी अ गुड एग्जांपल फॉर देम। अच्छा, थैंक यू सो I'll मच। not give a जी, traditional message. I'll just share. अभी किसी से बात हो रही थी तो they told me, तो I'm just want to quote a friend. He said, obviously उन्होंने भी कहीं से पढ़ा था, reference मुझे नहीं पता है कहाँ का, कि your career is like a cricket match. It's not just about hitting big wins, sixes की नहीं होता, or not only about avoiding being bowled out or avoiding failures. जो successful players होते हैं ना, they know when to defend, when to attack, and they take calculated risks and build partnerships. आप जितने ही अच्छे प्लेयर क्यों ना हो, अगर आपके सामने जो दूसरा प्लेयर है वो आपका पार्टनर भी आपकी लाइन और लेंथ को मैच नहीं कर रहा हो, जिस तरह भी हमने वर्ड किया था, द वाइब इज नॉट वाइबिंग वाली, सो दे नो हाउ टू डेवलप, गुड प्लेयर्स नो दे हैव टू बिल्ड पार्टनरशिप्स एंड अडॉप्ट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द पिच कंडीशंस क्या है, जो हमारी मार्केट सिचुएशन है, the weather, the economic conditions, and the position, the competitors in the market. तो self awareness आप में होनी चाहिए, social awareness होनी चाहिए, and the world is is out for you. आपको अभी सिर्फ पाकिस्तान की जॉब नहीं, there are so many other opportunities available to you. So थोड़ी सी अपने अंदर self awareness रखें और थोड़ी सी social awareness, and that's the key to success. दोनों का आप जब बैलेंस करेंगे and upskill करते रहें, that's it. thank you so much, Bilal. Thank you so much, Rashanda. Thank you so much, राबिया जी राबिया राबिया आफाफ फाफ साहिबा। जी राबिया आफाफ साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। ऑडियंस आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वेबिनार नंबर 49 के साथ एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत अच्छा रहा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।